So we are having a ladder 5 meter long is leaning against a wall. तो चलिए जी, एक ladder है, it is leaning against a wall. Just a second. So this is, हम इसको ऐसे लेते हैं, ये A, ये B एंड ये C है, ये X है और ये Y है, और ये लैडर की जो हमें हाइट बताई हुई है वो 5 मीटर बताई हुई है। तो अब देखें, लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? Okay. हम कहते हैं let AB is equals to 5 meter is ladder and AC is the height where ladder is reaching to the height ठीक है। तो आप देखें इन ट्राइंगल एबीसी x square plus y square equals to 5 square by PGT, इसको आप 1 ले लीजिए। राइट, आल्सो हमारे पास दिया गया है dx by dt is equals to 2 centimeter per second. Right, now differentiating one with respect to x, we get सॉरी विद रिस्पेक्ट टू x नहीं, हम लोग इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, बिकॉज टाइम को लेके बात कर रहे हैं हम लोग, तो टाइम को लेके ही हम लोग फर्दर चलेंगे। विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास क्या जाएगा, d बाई डी टी ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ 5 स्क्वायर, यह आ जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0।
अब हमारे पास ऑलरेडी ये दिया गया है, तो 2x इंटू 2 प्लस 2y इंटू dy बाई dt इज इक्वल्स टू 0। यह आ जाएगा 4x प्लस 2y इंटू dy बाई dt इक्वल्स टू 0। 2y into dy by dt is equals to minus 4x और dy by dt is equals to it is minus 2x upon y। So this was very simple। अब ये बोलता है at x is equals to 4 y is equals to 5 square minus 4 square equals to 9 और y is equals to 3। तो therefore हम कह सकते हैं dy by dt at x equals to 4 is minus 2 into 4 upon 3 equals to minus 8 upon 3 meters per second। So this is the answer, friends। I hope it is clear to everyone। Kindly note this down, then we'll do the next question। The question given to us is a particle moves along the curve 6y is equals to x square plus 2. Find the points on the curve which at which the y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate। तो बेसिकली सारा क्वेश्चन इसी के ऊपर ही बेस्ड है। Here y coordinate changes यानी dy by dt is equals to 8 times dx by dt। यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा बेस्ड है। तो यहाँ पे बोलते हैं पार्टिकल मूव्स अलोंग दिस, तो गिवन curve is 6y is equals to x square plus 2। ठीक है, अब बस हमें ये बताना, इस तरह पूछता है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to t आ जाएगा d by dt of 6y is equals to d by dt of x square plus 2। 6 into dy by dt is equals to 2x into dx by dt। अब देखिए यहाँ पे खुद से इसने बोला हुआ है कि dx by dt is equals to 8 times आप देख लीजिए, इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट
ये आ जाएगा आपके पास 6 टाइम्स। अब dy बाई डी टी को हम लिख सकते हैं 8 टाइम्स dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2x इंटू dx बाई डी टी। ये dx बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा। 48/2 इज इक्वल्स टू x आ जाएगा और दिस implies that x is equals to 24। If x is equals to 24, therefore 6y is equals to 24 square plus 2। हमारे पास क्वेश्चन में है 6y is equals to 100, सॉरी ये x क्यूब था, दिस इज x क्यूब, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। आई एम सो सॉरी, ये 3x स्क्वायर आ जाएगा, ये 3 और 2 भी कटेगा and then we are having x square is equals to 16, x is equals to plus minus 4 and therefore 6y is equals to plus minus 4 क्यूब। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, at x is equals to 4, 6y is equals to 4 cube plus 2, 6y is equals to 66, y is equals to 11, therefore point is 411 at x equals to minus 4, 6y is equals to minus 4 cube plus 2, 6y is equals to minus 62, y is equals to minus 62 upon 6, this is minus 31 upon 3, so therefore point is minus 4 minus 31 upon 3. So these are the 2 points जो हमारे लिए आंसर्स आएंगे। एक तो 411 आ गया एंड दूसरा शाबाशी। आप करें इसको नोट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 देखें। The radius of an air bubble is increasing at the rate of half centimeter per second. तो हम कहते हैं let r be the radius of the air bubble so here dr by dt is equals to half centimeter per second. At what rate is the volume increasing when the radius is 1 centimeter? At what rate the volume of the bubble increasing? ठीक है, तो हम कहते हैं let v be the volume
Therefore, B is equals to 4/3 pi r cube. B is equals to हम इसको ऐसे लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t. dv by dt is equals to d by dt of 4/3 pi r cube. Four upon 3 pi into 3r square into dr by dt. Pi 3r square और dr by dt हमारे पास ऑलरेडी है 1/2. ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dv by dt is equals to 2 pi r square and dv by dt at r is equals to 1 is 2 pi. तो हमें यही निकालना था, वॉल्यूम चेंजेस किस तरह से है. अब क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. सो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इज द आंसर फॉर अस. सो दिस वाज वेरी सिंपल. आप इसको नोट करें, फिर एक क्वेश्चन नोट करेंगे. चलिए जी क्वेश्चन पढ़ते हैं. Sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second and forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. Okay, how fast is the height of the cone increasing when the height is 4 centimeter? Okay. अब यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, कहते हैं लेट r be the radius of the cone, h be the height and b be the volume. Therefore dv by dt ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. और क्या गिवन है, आल्सो एट एनी इंस्टेंट ये बोलता है h is equals to 1/6 of r or 6h is equals to r. Now we know volume is equals to 1/3 pi r square h. इसको आप 1 ले लीजिए, इसको आप 2 ले लीजिए,
सो फ्रॉम सेकंड, अगर आप सेकंड को देखें तो हमारे पास r क्या आ गया, 6h के बराबर आ गया। तो आप यहाँ पे r की जगह 6h लिख दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू 1/3 पाई, r is 6h square into h। और यहाँ पे आपके पास ये 3 and 36 कटेगा और v आपके पास क्या बन जाएगा, 12 पाई h क्यूब। इसको आप थर्ड ले लीजिए, differentiating both sides with respect to t, therefore dv by dt is equals to d by dt of dv by dt is 36 pi h square, it is 36 pi h square। अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है into dh by dt, और this implies that dv by dt की वैल्यू मैं पता है 12 is equals to 36 pi h square into dh by dt। एंड देन ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम 12/36 pi h square is equals to dh by dt, and 1/3 pi h square is equals to dh by dt। और इससे हमें क्या बोला, dh by dt हमें बताना है at h is equals to 4, तो dh by dt at h is equals to 4 is 1/3 pi 4 square। वन अपॉन 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, इट इज 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। So I hope this is very much clear to all of you. Kindly note this down. I hope ये सबको क्लियर हो गया होगा। बाकी के क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, आज फिनिश करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे पूछेगा। कल हम लोग इसके आगे एक और छोटा सा चैप्टर है, मतलब इसी का ही पार्ट है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सो विल स्टडी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन टुमारो, एंड इसी तरह से इसके छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वी विल फिनिश इट। ठीक है, तो बस जल्दी ये वाला पार्ट भी फिनिश हो जाएगा। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट टुमारो, एंड इन द मीन टाइम किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन आस्क मी। एंड अनदर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, किसी को भी अगर पिछले टॉपिक्स रिवाइज करने हैं 12th के, तो वो सुबह 7:30 बजे मुझे ज्वाइन कर सकता है। अभी मैट्रिसेस चल रहा है, वहां पे जो है वो फास्ट पेस पे थोड़ा चलेगा,
तो आपको ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे इसको कवर अप करने में, क्योंकि हम उसमें कंसेप्ट को ही रिबिल्ड कर रहे हैं. इफ एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन तो डू मैसेज मी, सो आई विल ऐड दैट पर्सन इन द ग्रुप. थैंक यू वेरी मच. आज इतना रखेंगे, कल करते आगे कंटिन्यू. बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस. जय. जाइएगा नहीं, मुझे आपकी अटेंडेंस लेनी है, देन उसके बाद आप ऑफ कर सकते हैं.